ایسی جنگ چھڑی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ کسی لمحے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی. ان کے 6 جہاز ان کے گرائے جن کو پر ان کو بڑا ناز تھا. الفتح مظاہروں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا. دنیا کے بے شمار ممالک اس بات پر پوری طرح یکسو تھے کہ پاکستان حق پر ہے. پاک بھارت جنگ کے نتائج بہت زیادہ بھیانک ہو سکتے تھے. افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے جوابی کارروائی میں اپنے دفاع کا حق استعمال کیا. وزیراعظم شہباز شریف کا مارکہ حق میں آزاد کشمیر کے شہداء کے ورثہ میں امدادی رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب. کہا کہ بے شمار ممالک یکسو تھے. پاکستان حق پر ہے. بھارت گھمنڈ اور غرور میں تھا. دنیا اس کے ساتھ ہوگی. مودی سرکار اب پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے 100 بار سوچے گی. مزید کہا وقت آ گیا پاکستان کو اتحاد اور اتفاق سے آگے بڑھانا ہے. اتحاد سے چلیں تو دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا. منسٹری آف انٹیریئر، فارن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری سب کو انوائٹ کرنا چاہیے اور ہم بیٹھ کے ایک اسپیشل کمیٹی بیٹھے اور اس کا ایک راہ متعین کریں ملک کے لیے. مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہوا کاورڈلی ایکٹ بچوں کے اوپر اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں بہت دل خراش مناظر ہم نے دیکھے اور آج بھی وہ یاد میں باقی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا لیکن کچھ حصے رہ گئے. بزدار حملہ ناقابل برداشت. بھارتی پراکسیز باز آ جائیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بھارت کی فضا اور زمین پر جو حالت ہوئی اس پر ان کو سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں دہشت گردی کے مسئلے پر بیٹھ کر لاہ عمل متعین کرنا ہے. بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا. ماضی میں ہم نے بارڈر کھول کر 40,000 لوگوں کو آنے دیا. ماضی میں یہاں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا. پاکستان اور اس خطے سے دہشت گردی ختم کرنا بہت ضروری ہے. دورہ چین کے دوران بھی دہشت گردی کا معاملہ زیر بحث آیا. فوجدار دھماکے کی ایک اور زخمی طالبہ دوران علاج دم توڑ گئی. شہید سحر سلیم 8ویں جماعت کی طالبہ تھی. بزدلانہ حملے میں شہید طالبان کی تعداد 4 ہو گئی. حملے کا مقدمہ CGD تھانے میں درج. قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل. آپ معصوم بچیوں کو اگر سانس لینے کا حق نہیں دیتے، جینے کا حق نہیں دیتے، زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، تعلیم کا حق نہیں دیتے، تو پھر آپ کون سے حقوق کی اور کس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں اور ان سے ہماری کسی نوع کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. ان کو کچلنا چاہیے. سینٹ اجلاس میں سانحہ خضدار حملے کی شدید مذمت. معصوم بچوں کی شہادت پر ایوان میں دعائے مغفرت. عرفان صدیقی نے کہا ان دہشت گردوں کے سر قلم کیے جانے چاہیے. کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. بھارت کو سبق مل گیا. ہم منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انور الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کے قاتل معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ کون سے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہندوستان کی عام عوام پاکستان کی دشمن نہیں ہے. پاکستان دشمنی میں پہل سر فہرست لیڈ رول اس سیڈسٹ ذہنیت RSS کا ہے. ان آقاؤں کی خوشنودگی کے لیے ان بھیڑیوں، ان درندوں نے خضدار کے اسکول بچوں پہ حملہ کیا. ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا. اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے. اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے. وہ ہمیں ایک کمزور ملک سمجھ کر آگے بڑھے تھے اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا. ترقیاتی بجٹ کم کریں، دفاعی بجٹ بڑھائیں. افواج پاکستان کی تنخواہوں کو دگنا کریں. سینیٹر فیصل بابڈا کی تجویز. کہا ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ کو بڑھانا پڑے گا. بھارت سے جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے. بس بہت ہو چکا. دہشت گردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں. پاکستان کبھی جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا. بیرسٹر علی ظفر کی خضدار واقعے کی شدید مذمت. کہتے ہیں خضدار میں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا.
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार उल हक कहते हैं पूरी कौम की दुआओं से मार्का हक में कामयाबी मिली, पाकिस्तान को कमजोर दुश्मन का सामना है, भारत मक्कार दुश्मन है, दोबारा जारियत की जुर्रत नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम का कहना है कि भारत ने हठधर्मी दिखाई, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। इस सब के बाद दुनिया में पाकिस्तान से मुतालिक ख्यालात तब्दील हुए। पाक फिजाइया ने भारतीय जहाज गिराकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने वतन का दिफा किया। आज़ादी इज़हार राय को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ किरदार कशी में मुलव्विस हैं। पूरी कौम अपने शाहीनों और बहादुर जवानों को सलाम पेश करती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्तें मुस्तरद, नज़रसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया, तफसीली हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26वीं आईनी तरमीम को पहले सुनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। कौम अदलिया के साथ है, बानी पीटीआई डटे हुए हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दी है, मुज़ाकरात करने हैं तो बानी तैयार हैं। डंडे के जोर पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन डंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारी बातचीत और डिमांड आइन के लिए है, बार बार आइन की पामाली हो रही है। अदलिया स्टैंड ले, ये अदलिया का काम है। बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, उन्हें रिहा किया जाए। बानी पीटीआई को यकीन नहीं हो रहा कि वो सजा याफ्ता मुजरिम और जेल में कैद हैं। वो 3 दिन से पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम से छुप रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा बानी पीटीआई जान ले ये बनी गाला नहीं अडियाला है। 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। बानी पीटीआई का 9 मई के मुकदमात पर पॉलीग्राफिक टेस्ट। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम आज भी खाली हाथ लौट गई। बानी पीटीआई ने तीसरी बार भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। भारत सरकार पर एक और सफारती वार, पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई। पाक भारत जंग हमने रोकी, अमरीकी सदर ने अपना दावा दोहरा दिया। ट्रंप का कहना था कि अब बड़ी डील होने वाली है, पाकिस्तानी लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। मैंने दोनों मुल्कों से कहा तुम ये क्या कर रहे हो। हमने जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने में कामयाबी हासिल की, दोनों के दरमियान कई तनाज़ा निपटाए, तमाम मामला तिजारत के जरिए हल किए। अब तिजारती मुआहिदों की जानिब बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत आबी जारियत से बाज न आया, किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम तक पानी रोक लिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस के मुताबिक 8 मुकाम पर दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। किसान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं कश्मीर हमारी शहरक और पानी हमारी जिंदगी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग लड़ी, दुनिया हैरान रह गई। दुनिया ने तस्लीम कर लिया पाकिस्तान एक कौम है। मौरका बुनियान मरसूस के बाद भारतीय सियासत में हलचल। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा के ऑपरेशन सिंदूर पर होशरुबा इंकशाफात। कहते हैं मोदी हुकूमत नाकामी छुपाने में मसरूफ है, तबाहशुदा तैयारों की असल तादाद छुपा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को इलेक्शन हथियार बनाया जा रहा है। सच बोलने वाले भारत में गद्दार करार दिए जा रहे हैं। भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के घरों को मिस्मार किया जाने लगा। तुर्की के न्यूज़ चैनल TRT की तफसीली रिपोर्ट ने मोदी सरकार के मकरू चेहरे से पर्दा उठा दिया। गैर कानूनी बांग्लादेशी करार देकर मुसलमानों की बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब, अहमद चीमा, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR भी मौजूद थे।
IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात में डेडलॉक। IMF ने FBR की टैक्स रियायत से मुतालिक तमाम बजट तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए सख्त शराइत आयद, रियल एस्टेट पर टैक्स कम करने की तजवीज़ भी मानने से इनकार। मुतवस्सित तनख्वाहदार तबके को माहाना ट्रांजैक्शन पर रिलीफ देने की तजवीज़ भी मुस्तरद। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने आज के मुज़ाकरात को इंतहाई अहम करार दे दिया। IMF को टैक्स रियायत देने पर कायल करने के लिए दोबारा कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम और कारोबार दोस्त करार OICCI ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी रिकॉर्ड हुई। मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के एतमाद में इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कारकर्दगी 3 से बढ़कर 15% हो गई। OICCI ओहदेदार के मुताबिक ये सर्वे 6 माह पर मुहित होता है। हमारा फोकस बिजनेस कॉन्फिडेंस पर है। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में 5 रुपये 2 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। मार्च की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर अवामी समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी डाटा का मजीद जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। कमी का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। बहिर अरब के मशरिक़ वस्ता हिस्से में कम दबाव का निज़ाम बन गया। कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 1075 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम अगले 36 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। सिस्टम इब्तदाई तौर पर शिमाल की जानिब बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तानी साहिली इलाकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। मर्दान के इलाके गड़ियाला में फायरिंग, गोलियां लगने से बाप और 2 बेटे मौके पर जाबाग। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।